we have to have one coil which is able to rotate. Then we have to have one magnetic field in which this coil will be placed. Then we have to complete the circuit so that induced EMF can be taken out. So this makes a generator, because we are generating electric current, that is induced electric current by rotating the coil. So first we will see what are the material we are using in AC generator. There is a coil and it has got many turns. ये यहाँ से हमने ऐसे रोटेट किया and let us say it has got n turns. We make such an arrangement that it can be rotated. कैसा अरेंजमेंट होगा? We will make a frame. उस फ्रेम, ये हमने एक फ्रेम बनाया और इस फ्रेम पर यहाँ पर कंडक्टिंग वायर को रैप कर दिया. That becomes a coil. और यहाँ से उसके दो एंड्स नीचे निकाल लिए, यहाँ पर इसके दो एंड्स नीचे आ गए. नाउ यहाँ पर हमने दो पाइवट लगा दिए और उस पाइवट से हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं we will fit a shaft here. ये shaft लगा के ये हमने बना दिया. Now if you rotate the shaft, the whole thing will rotate. ये उसकी shaft है. इस shaft को पकड़ के जब भी हम ऐसे घुमाएंगे, the coil will rotate. So there is a shaft here. Shaft. This is coil. Okay. So there is a coil, there is a shaft which can be rotated. To rotate it, we can give it power and rotate. Then there has to be a magnetic field. For that we put two electromagnets here. These are electromagnets. We can write it north, south. So there will be an electric field over here. There is a coil placed in the magnetic field. Now you understand? Okay. Then this is the basic structure. This is a shaft. This shaft is held in the two bushes so that it can rotate. To rotate it, we give it energy, we give it power with help of a turbine. This turbine is rotated with putting steam on it. Okay? So इसको हम steam से चला सकते हैं, इसको हम मैनुअल चला सकते हैं. कार में हम इसको इंजन के साथ चलाते हैं, पेट्रोल इंजन के साथ में, और अगर आप चाहें तो इसको साइकिल में चला सकते हैं. किसी भी चीज से हम यहाँ पर एनर्जी देंगे, इसको रोटेट करेंगे, ये इसको रोटेट करेगी और ये रोटेट होगा. दिस इज एनर्जी इनपुट. ओके. उसके बाद एक्शन क्या होगा देखिए. व्हेन वी चेंज इट, व्हाट हैपेंस? द फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल चेंज एंड एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. E is equal to d phi by dt, and here phi is equal to BA cos theta. We rotate this coil with an angular velocity of omega per second. Omega, angular velocity. Angular velocity is omega. Okay. Now, at any time t, how much is the angle made? Answer is, at time t, angle made theta is equal to omega into t. What is omega? Angle made in 1 second, angle made in 2 seconds is 2 omega, angle made in t second is omega t. So we take any situation as 0, start the time, after t, how much it has turned? Omega into t. So what is this theta? This is the angle of turning. This we can write as omega t. So that we can express it as a function of time.
ये जो थीटा है टाइम के साथ चेंज होता है, so it is a function of time. And what is that function? Omega t. What is omega? Angular velocity. This is a uniform velocity. Because it's a uniform velocity, we can say this is a constant and this is a variable. In any case, अब से हम लोग थीटा को ओमेगा टी ही लिखेंगे for this particular case. So E is equal to B A cos omega t. Now this is EMF induced in one turn, but we have taken n turns, so we can write it. Let's write it capital N, NBA cos omega t. This is what? Phi d by dt. The rate of change of flux gives the EMF in the coil. This is equal to, now here is a constant because during the rotation number of turns are not changing and magnetic field is not changing, area is not changing. Cos omega t, differentiation of cos omega t is how much? Can you tell me? Yes, sin omega t into differentiation of omega t, that is omega, divided by, okay, this is d by dt of cos omega t done, minus, and that minus and this minus will become plus. So this we got expression for EMF induced, that is NBA omega and BA omega sin omega t. Now in this, which are the constants and which are variables? So answer is N, B, A, omega. All are constants. Then E will keep on changing with respect to t. So E is a function of time. जैसे जैसे इसमें टाइम बीतेगा, देखिए यहाँ से हमने इसको घुमाना स्टार्ट किया, ये टाइम बीतते जा रहा है, यहाँ से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम के साथ और क्या क्या बदल रहा है? EMF. ठीक, ये EMF इस तरह से इसमें चेंज होगा. लेकिन ये EMF हमको मिलेगा कहाँ? कॉइल के दो एंड्स. तो कॉइल के दो एंड्स कहाँ हैं? वी विल मेक इट हियर. यहां पर हमने कॉइल को रैप किया, ये कॉइल का एक एंड नीचे आया, ये कॉइल का दूसरा एंड नीचे आया, और इन दोनों एंड्स में हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस, वी गेट इट हियर. इस पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी ए करंट इन इट ओनली एंड ओनली इफ वी कंप्लीट द सर्किट. यहां से जब चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं विथ लॉट ऑफ एनर्जी, वी वॉन्ट टू ब्रिंग दोज चार्जेस टू अवर हाउस. अगर वो हमारे घर में मूव करके आएंगे, वी पुट देम इन द बल्ब, इन द फैन, इन एवरीथिंग, वेयरएवर वी वांट द वर्क टू बी डन. तो हम ये चाहते हैं कि यहां पर हमारे घर का लोड है, इससे हमको इसको कनेक्ट करना है, so that these charges will come here and they will go from here. ये हमारा घर है, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, the complete township, the complete country is there. यहाँ से चार्जेस जाएंगे और यहाँ से वापस आएंगे. This will become the chain. This will become the cycle. What is the foremost thing for electrical energy? That is circuit. What do we want? Circuit if current has to flow, and a complete circuit. If we break circuit from any point, then there will be no electric current. तो अगर हमको इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करानी है, we have to complete the circuit. तभी करंट फ्लो होगी. और करंट किस में फ्लो होती है? सर्किट के हर पॉइंट में करंट फ्लो होती है. तो ये करंट यहाँ से भी फ्लो हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, और यहाँ से भी हो रही है. इसका ये मतलब है कि ये जो बल्ब जल रहा है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कहां से तक जाएगी? तो आंसर है ये करंट पावर हाउस के रोटर के अंदर भी जाकर आती है. तो हम करंट बाहर से, ट्रांसफार्मर से, यहां से, वहां से, कहीं से भी लेते, हम क्या सोचते हैं करंट यहां से आ रही है? नो, द करंट एक्चुअली कम्स फ्रॉम दैट जनरेटर.
और जनरेटर का जो कॉइल है उसके अंदर से ही करंट जा रही है, बल्ब की भी, फैन की भी, हर चीज की करंट, पूरी की पूरी करंट इसमें से जा रही। एक छोटा सा जनरेटर है, उसमें पूरी करंट जाएगी ही जाएगी, तभी सर्किट कंप्लीट होंगे। ओके, नाउ देयर इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हमारे घर की वायरिंग ऐसे है, पोल लगे हुए हैं, पोल से ये दो तार जा रहे हैं एंड ऑल दिस सिस्टम इज ए स्टेशनरी सिस्टम। एक ग्राउंड पर खड़ा हुआ स्टेशनरी सिस्टम है, वी आर नॉट मूविंग इट। पर यहां देखिए ये दोनों घूम रहे हैं, रोटेटिंग। अब यहां से ऊपर से ये इसके दो एंड हैं और ये ऐसे घूम रहे हैं और नीचे के एंड नहीं घूम रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, इसमें ट्विस्ट होगा और ये तार टूट जाएगा। सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक एंड को स्टेशनरी रखें और दूसरे एंड को घुमा दें, ये हो नहीं सकता। सो वी हैव टू मेक ए सर्टेन अरेंजमेंट देयर सो दैट देयर इज ए कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन तो हमको चाहिए, अदरवाइज हाउ चार्जेस विल फ्लो। तो यहां पर हम एक ऐसी चीज बनाते हैं कि ये रोटेट होता रहे, ये खड़ा रहे, दोनों, उसके बावजूद भी करंट कंटिन्यूअस फ्लो होती रहे, एंड दैट इज कम्यूटेटर, जो कम्यूट करता है चार्जेस को। नाउ व्हाट इज ए कम्यूटेटर? कम्यूटेटर इज ए सिस्टम विच हैज गॉट टू पार्ट्स, रिंग्स एंड स्लाइडिंग और स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। देखिए ये जो रॉड यहां पर आता है, इस रॉड के साथ हम एक रिंग अटैच कर देते हैं, ये, और इस रिंग का कनेक्शन ये वाले टर्मिनल से यहां कर देंगे। इसी तरह से इसके इस रिंग के साथ इस टर्मिनल का कोई कनेक्शन नहीं है, उसको अंदर से ले जाके हम यहां तक ले आते हैं और यहां लाने के बाद यहां एक दूसरा रिंग बनाते हैं और इसके साथ ये दूसरे टर्मिनल को अटैच कर देते हैं। दोनों रिंग को एक्सल है एंड द सेम एक्सिस इज देयर। ये तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, शाफ्ट रोटेट होगी, कॉइल रोटेट होगा, दोनों रिंग रोटेट होंगे, और जब ये दोनों रिंग रोटेट होंगे, ये कॉइल रोटेट होती है, शाफ्ट रोटेट होगी, उसके साथ ये दोनों रिंग ऐसे रोटेट होंगे। जब ये रिंग रोटेट होते हैं, देखिए ये ऐसे, नाउ आई टच इट हियर, ये मैंने एक कार्बन का ब्लॉक लिया विच इज ए कंडक्टर, आई पुट इट हियर एंड दिस कीप्स ऑन रोटेटिंग। ये आप देख रहे हैं, इसके कांटेक्ट में अभी भी है, ये मूव कर रहा है क्या? नो, इट इज स्टेशनरी। और ये रिंग मूव कर रहा है, कांटेक्ट है कि नहीं? कांटेक्ट है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को अगर यहां जाना है, इट कैन गो लाइक दिस। सो दिस इज एन अरेंजमेंट, दिस इज ए स्लिप रिंग कार्बन ब्रश अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कम्यूटेटर। और हमने क्या किया, एक एंड के साथ में एक रिंग लगाया है और दूसरे एंड के साथ में दूसरा रिंग लगा दिया, इस तरह से। तो अब अगर हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है, इट्स वेरी इजी, इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम हियर, कम फ्रॉम हियर एंड गो टू दिस सर्किट। यहां से आएंगे और यहां से आके फिर इसके साथ, यहां इसके साथ हमने अटैच करने। नाउ हाउ डू वी डू दैट? This is a ring and here we have a sliding brush. This is a carbon brush which is mounted on a spring. ये spring इस carbon brush को हमेशा ऐसे दबा कर रखता है, ऐसे, so that there is no loose contact, और ये ऐसा ring घूमता रहता है, so there is always exchange of electrons. And now you can see the circuit load here, discharges are going here, coming here to this brush, and from this carbon they will come here. So this system is slip ring carbon brush system known as commutator. Slip rings carbon brush.
Okay, so this helps us to take out the charges to our circuit. So now there are three important parts of generator. One is rotating coil. One is, this is also coil. So we call it stationary coil, but physically we can call it, it's a magnet. And there is a commutator. These are the three parts. Description. Generator has three components. Rotor, coil, which can rotate about an axis on a shaft. The shaft is connected to source of power. Source of power like turbine. Okay, this is first part, and the second part is description. Second part is stator. Stator coil provide moving coil and stationary circuit. So commutator, it is a pair of slip rings and carbon brush. It will facilitate flow of current between moving coil and stationary circuit. Okay, so these are the three major parts of it, and after that we are connecting it to the load that we bring it to our town and distribute it. Now the description is done, and now we come to the principle, or no, थोड़ा सा सीक्वेंस को करेक्ट कर लेते हैं. हाउ डू वी राइट इट? नंबर वन, एसी जनरेटर. द फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड आगे पीछे हो गया है. लेट्स करेक्ट इट. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए, इट्स ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स mechanical energy to electrical energy. Rotating a coil with help of a shaft is a mechanical work. इस पर हम फोर्स लगाएंगे, शाफ्ट पर फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट करेंगे. दैट इज व्हाट वर्क डन. और कैसा वर्क है ये? मैकेनिकल वर्क. So we are doing a mechanical work. What is the result we get? Electrons flowing in a circuit, and what is that? That is electrical energy. So this is a device which converts mechanical to electrical. Second principle. It works on the principle of mutual induction. Works on the principle of mutual induction. Mutual induction we have studied in the previous class. Oh, sorry, not mutual induction. That is transformer, which works on mutual induction. This is electromagnetic induction. What is the principle of electromagnetic induction? Faraday's first law.
whenever there is a change of magnetic flux linked to a coil, an EMF is induced in the coil, and if the circuit is complete, then current will flow. That is introduction and principle. Third, this is third, description. All this description we have done. Then fourth is calculation. Phi is equal to BA cos theta. Theta is converted into omega t, so this is BA cos omega t. If there are n turns, it is NBA cos omega t. Then rate of change of flux is differentiation of NBA cos omega t, and when we do the differentiation, it becomes sin omega t omega, and this becomes positive, so E is equal to NBA omega sin omega t. This is EMF at any time t. Now this EMF keeps on changing. Why it keeps on changing? Because with the time sin omega t value also keeps on changing. Sin कहाँ से कहाँ तक vary होता है? 0 to 1. The maximum value is +1, minimum value is -1, and it will keep on changing. -1 0 +1 0 -1 0 +1 0, like that. So EMF will also keep on changing accordingly. This we can settle it, we can give it a name. किस तरह से? What will be the maximum value of EMF? Maximum value of EMF is, what is the condition that this is maximum? Answer, when sin omega t is maximum, क्योंकि ये तो constant है. So maximum value of EMF is when sin omega t is equal to 1. ये then EMF will be maximum. और ये जो maximum EMF है, maximum value of EMF, उसका हमने सिंबल बनाया E naught और E max. That is when sin omega t is equal to 1. Therefore sin omega t को 1 कर दीजिए, this will be NBA omega. उस समय E किस में कन्वर्ट हो जाएगा? E naught. So E naught is equal to NBA omega. So in any generator, what is the maximum EMF it can produce? That is NBA omega. Now from all these points you will get 1 mark, 1 mark, 1 mark questions. Peak EMF depends upon which quantities? NBA omega. Okay, what is N? Yes, if number of turns increase, peak EMF will increase. A, area. B, strength of magnetic field. And omega? Yes. जब हम एक जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फैक्ट्री में ही उसका N डिसाइड हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखने. B डिसाइड हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. A डिसाइड हो जाता है बिकॉज एरिया ऑफ द कॉइल इज फिक्स्ड. ये तीनों चीजें फैक्ट्री में डिसाइड होती हैं, ये फैक्ट्री में नहीं डिसाइड होता. व्हाट इज दिस? ओमेगा, एंगुलर रोटेशन. अगर हम उसको अपने कार में फिट करें, मोटरसाइकिल में करें या पावर हाउस में करें, अगर ऐसे धीरे घुमाएंगे तो ओमेगा स्लो है, और अगर ऐसा फास्ट घुमाएंगे तो ओमेगा ज्यादा है. इसका मतलब ओमेगा को हम कम या ज्यादा लोकलाइजेशन सिचुएशन में कर सकते हैं, लोकलाइज सिचुएशन में कर सकते हैं. और अगर ओमेगा को फास्ट करेंगे तो क्या होगा? EMF इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ओमेगा कम हो जाएगा तो EMF कम हो जाएगा. ठीक है. और ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. व्हाट इज f? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड. ये जो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड है, दिस डिसाइड्स मैक्सिमम EMF. इंडिया में ये वाली फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं
50 cycle per second. F. What is the value of F in India? 50 cycle per second. Minutes में काउंट करेंगे, multiply by 60, this will be 3000 RPM. All the powerhouses in India are running at 3000 RPM. That is 50 cycles per second. ये आपको याद रखना है. Now, if आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है एडी करेंट्स. एडी करेंट्स आर इंड्यूस्ड करंट. ओके, सो करंट यहां पर इंड्यूस हो रही है. Why the current is getting induced? Because the flux linked with the coil is changing. अगर फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होती है. और एडी करंट क्या करती है हमेशा? इट इज ट्राइंग टू ब्लॉक द मोशन विच इज प्रोड्यूसिंग एडी करंट. तो यहां पर एडी करंट कौन सा मोशन प्रोड्यूस कर रहा है? कॉइल का रोटेशन. तो एडी करंट की हमेशा कोशिश क्या होती है कि इसके मोशन को स्टॉप कर दिया जाए. तो जैसे ही हम इसको फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होती है और वो करंट एक लेंजेस लॉ से एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है. वो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आकर इसके मोशन को स्टॉप करना चाहता है. दैट वी कॉल द लोड ऑन जनरेटर. हम जब उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं? एडी करंट उस पर लोड लगाकर उसको रोक रही है, ब्रेक लगा रही है. आपने एडी करंट में ब्रेक भी पढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. तो हम क्या देखते हैं? एक फोर्स लग रहा है तो हमको खूब उसमें फोर्स लगाना पड़ता है. अगर आपने कभी साइकिल के साथ डायनमो चलाया होगा तो आपको पता चलेगा इट्स नॉट वेरी लाइट. हमको यहां पर फोर्स लगाना पड़ता है. वो फोर्स कहां से आता है? इसके अंदर जो एडी करंट्स है, दीज एडी करंट्स आर अपोजिंग द मोशन because the motion is changing the flux. So it does not want to change, so eddy current apply a opposite force, and that force we realize here and we have to give it a force. उस फोर्स के कारण क्या होता है? उस फोर्स के कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है. अगर इसकी स्पीड कम होगी तो इसका पीक ईएमएफ कम हो जाएगा. इसलिए शाम को जैसे ही शहर की सब लाइट्स जलती हैं उस समय लोड एकदम इंक्रीज होता है. लोग हीटर चालू करते हैं, लोड इंक्रीज होता है. द करंट चेंजेस इन दिस एंड द मोमेंट करंट चेंजेस देन द अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू द रोटेशन और इसके रोटेशन का आरपीएम कम हो जाता है. दैट 50 साइकिल डिक्रीज. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पर आप एडी करंट पढ़ चुके हैं इसलिए आप जानते हैं कि जब भी एडी करंट पैदा होगी वो हमेशा क्या करेगी? मोशन को अपोज. एडी करंट कब पैदा होती है? whenever there is a motion of coil in a magnetic flux. That is what's happening here. So this coil moves, एडी करंट्स आर फॉर्म. उसी एडी करंट को हम बाहर लेकर आए हैं और वो एडी करंट इसके मोशन को ही अपोज करती है. दैट इज लेंजेस लॉ. और उसके कारण ये स्लो होना शुरू होता है. स्लो मत हो इसलिए हमको यहां पर लोड बढ़ाना पड़ता है. फिर भी ये थोड़ा स्लो होता है. फ्रॉम 50 आरपीएम इट में कम डाउन टू 49 आरपीएम. और इंडिया में हम लोग 49 के नीचे नहीं जाने देते. इफ इट कम्स बिलो 49 देन इट विल ट्रिप. ओके, ये जनरेशन के कुछ नियम बने हुए हैं. ओके, सो दिस इज ओमेगा. इन इंडिया वी कीप ओमेगा एज 3000 आरपीएम बट इन यूनाइटेड स्टेट्स इट इज 3600 आरपीएम. वहां के जनरेटर थोड़ा सा फास्ट चलते हैं. ओके, बट अदर थिंग्स दे कीप लेस, सो देयर this E naught is different than E naught what we produce here. Okay. Now E naught is NBA omega. We come back to this equation. E is equal to NBA omega sin omega t. In place of this NBA omega, what we can put? E naught. Then this equation will be E is equal to E naught sin omega t, and we write it here. E is equal to E naught
sin omega t is equation of वेरिएबल EMF। ये वेरिएबल EMF का इक्वेशन बन गया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो यहां पर हमने क्या चेंज किया था? थीटा। सो नाउ वी हैव स्टडीड ऑल द थ्री कंडीशंस। नंबर वन, EMF is produced by changing B, this moving the magnet, A area moving the conductor and changing the area। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, this is the magnetic field and I put it like this। ये एरिया इंक्रीज हुआ, जैसे ही एरिया इंक्रीज होगा इसमें करंट फ्लो होगी, that is by changing the area। And the third is by changing the angle, rotating it this way। This we are changing the angle। So these are the three methods। Now in the generator, this third method we are using and making this EMF। This EMF is a very special EMF और इस EMF को अब हमने स्टडी करना है। ये EMF कैसा है? This depends upon value of sin omega t and sin omega t it changes with time t। How it changes with omega t? देखिए, I write different values of t। ये जब एक सर्कल ऐसा मूव करेगा, here t is equal to 0 और फिर जब एक राउंड लगाकर आएगा then t is equal to t। So what will be the time here? t by 2, t by 4, 3 upon 4t। Okay, this 90 degree, this is 90 degree, then 180, 270, 360, and this t changes from t by 4, this। We have to calculate E। We know that when t is equal to 0 or t is equal to t, in both the timings this will be 0, so this will be 0। Let's tabulate it। और इसको हमने tabulate किया, t is equal to 0, t by 4, t by 2, 3 by 4t and finally t। Okay, then what will be the value of sin omega t? 0, t by 4, t by 2, 3 upon 4t, t। Sin omega t, sin 0 is 0, sin 90 1, this is 0, minus 1, 0, 0 1, 0 minus 1, 0 1, 0 minus 1, 0 1, 0 minus 1, it keeps on oscillating। And then what will be the value of E, variable E? 0, E naught, 0, minus E naught and again 0 here। So 0, E naught, 0, minus E naught। What is minus E naught? The answer is it has the same value of E naught but its direction is opposite। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इनके बीच में बना 240 वोल्ट। आधे साइकिल के बाद ऐसा हो जाएगा, this will be 240 volt, this will be 0, again this will be 240, this will be 0, right? या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये 0 है, ये 240 है, ये 240 अभी 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस 240 हो जाएगा, ये डायरेक्शन आ गई, फिर प्लस 240 ये डायरेक्शन, फिर माइनस 240 ये डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ EMF कीप्स ऑन चेंजिंग। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस ड्यूरिंग वन साइकिल। सो EMF विल बी like this in one cycle, it will again come back to 0। Okay, अब इसका हम इसको डिफाइन करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। फिर से देखिए, ये हमको एक ऐसा EMF मिलता है, एक ऐसी करंट मिलती है जो t टाइम के बाद
फिर से अपने आप को रिपीट करती है। एवरी टाइम इट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे t बदलेगा ओमेगा t एंगल बदला जाएगा, एंड व्हेन द एंगल इज चेंजिंग द साइन वैल्यू इज आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। सो इफ साइन वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, e is changing. So we got one condition. That condition is the value of EMF continuously change. This is one characteristic of this EMF. The other characteristic is for this much time, for half of the time it remains positive and for half of the time it remains negative. So there is a periodic change and there is a continuous change. Periodic change makes it positive and negative, direction changes, and continuous change make its magnitude keep changing continuously. Now this thing is very clear if we make a graph of it. तो ग्राफ हम इसको बनाते हैं, किस तरह से ग्राफ बनाएंगे देखिए। फिर से हम यहाँ पर आते हैं जहाँ EMF जनरेट होता है। All our study of this EMF is very important. This we call alternating EMF, AC. यहाँ से हमारा AC चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। Okay, so this EMF here, this keeps on changing. जब ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे, तो ये जो कंडक्टर है ये अंदर जा रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड, और आधे साइकिल के बाद ये ऊपर आ रहा है। हमने EMF का प्रिंसिपल पढ़ा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन दिस वे। व्हेन द कंडक्टर इज गोइंग इन, देन आई एम कीपिंग दिस थंब इनसाइड, इन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डाउन। When the current comes downward, then this is the cycle. इसको याद रखिए, this one, okay, this white one. करंट अभी कहाँ जा रही है? नीचे। अब ये यहां से हाफ साइकिल पूरा हुआ, हाफ साइकिल पूरा होने के बाद ये ऐसे आता है। अब इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। So I have to change the force which was inside, now it is outside. फिर से north to south, the force outside, that is velocity outside. What is the direction of current? Up, ये up. अब ये अंदर जाएगा, so I have to make my thumb this way and the current become down. तो इसी कंडक्टर में आधे साइकिल तक करंट कैसी चलती है? डाउन, और फिर आधे साइकिल के बाद कैसी होती है? अप। When the current is up, then you see it is this way. Or when current is down, yes. So what we find, यहां से देखिए, when current is down, down, down this way, और इधर वाला कंडक्टर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, द करंट इज दिस वे। आधे साइकिल के बाद ये अंदर जाएगा, ये जो करंट डाउन थी ये वाली, ये वाला कंडक्टर इधर पहुंचा तो इसकी करंट कैसी हो गई? अप करंट हो गई, तो यहां से करंट कैसी हो जाएगी? अप, और यहां से डाउन, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। So for half of the cycle, current flows in one direction. For other half of the cycle, current flows in opposite direction. और एक डायरेक्शन में करंट कितनी देर तक रहती है? आंसर, for half the cycle, that is T/2. Okay. Now this we understand that it changes its direction periodically. It changes its value कंटिन्यूअसली। दो शब्द देखिए, कंटिन्यूअसली, पीरियोडिकली। कंटिन्यूअसली में कौन किसको चेंज करना है? वैल्यू को। पीरियोडिकली में किसको चेंज करना है? डायरेक्शन को। सो डायरेक्शन इज लिंक्ड विद पीरियोडिकली, एवरी पीरियड इट स्टेज फॉर सम टाइम इन वन डायरेक्शन, बट वैल्यू any 2 instant value will change. Okay, now how the values are changing and how the direction are changing, we can always make it with a graph.
So we will make a graph that is showing EMF versus time. हमारे पास इसकी रोटेशन 4 तरह की होती है and I will start it from t is equal to 0. When t is equal to 0, sin omega t is equal to 0. Here I make it. This is magnetic field B, and we have coil This is coil. If this is coil, then where is the vector? Area vector. This is area vector. Okay. Coil कैसे rotate कर रही है? ऐसे. And we are seeing the top view. ये coil है. इस coil को मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं. Top view. और ये ऐसे rotate हो रही है. इस समय ये ऐसी. This is area. This is area vector. Okay. Magnetic field is also in this direction. So what is angle theta between them? Very good. Theta is equal to 0. If theta is equal to 0, then how much is EMF? EMF is 0. Okay. So I write here EMF. This y section I take as EMF and in x direction t. So when t is equal to 0, here the EMF is 0. This. Now I divide it in 4 sections. T is equal to 0. Here t by 4. T by 2. Three upon 40, and this is t. One cycle. The timing is divided like this. Here EMF is 0, so I put a mark here at t by 4. अब आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं. What is the equation we are dealing with? Is E is equal to E naught sin omega t. And what are the graph we are making? EMF across the ends of the coil, यानी हमारे सर्किट में कितना EMF बन रहा है, वो in one cycle. E versus time in one cycle. Okay. ये coil ऐसी है और ऐसी घूम रही है. थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है, पर coil 1/4 टर्न घूम के यहां पर आ गई है and the coil has come to this direction. If coil has come to this direction, then this is area vector and this is B. What is this angle? 90 degree. Okay. If this is 90 degree, then put it here. 90 degree. Sin 90 is equal to 1, so E become equal to E naught. So I put a mark here, E naught, and at this time t by 4, this is E naught. ये full EMF हमको मिला, E maximum. Again, the time goes on, it keeps on rotating. थोड़ी देर बाद, when the time is t by 2, then what happens? ये एक 1/4 और घूमकर यहां आ गई coil. This is coil and where is the area vector? This is area vector. ये area vector पहले इधर था, coil ऐसा घूमी ऊपर चला गया, फिर ऐसा घूमी इधर आ गया, area vector. And now how much is the angle between the two? 180. We apply sin omega t, sin 180, and this gives us E is equal to minus E naught. E is equal to minus E naught. हमने कहीं किया? Yes, there. So this is equal to, this is plus E naught, this is minus E naught. Here. This is the value of, no, sorry, sin 180 is 0. So E will be equal to 0. So we get it here, 0. Right? Now,
we go to fourth position. Fourth position again, this is B, it has rotated and after rotation it has come here. और A कहाँ चला गया? नीचे. This is A, this is B and this angle is 270. For 270 degree, sin 270 is equal to -1 and this E becomes minus E naught. Now it is minus E naught here. फिर से we complete the rotation. This is B and this comes to original position, that is this, and here is area vector A. ये अभी भी रोटेट कर रहा है. The coil comes here. Here again omega t, that is theta, is equal to 0 and EMF also become 0. Okay, चारों आप देख सकते हैं. ये कॉइल ऐसा घूम रहा है, सेकेंड पोजीशन, और ऐसा घूम गया थर्ड पोजीशन, एंड दिस इज फोर्थ पोजीशन. इफ आई राइट इट PQ, then P comes here, then P comes here, and then P comes here, and again it comes back to PQ. ये कॉइल का एक रोटेशन हुआ और EMF की ये चार वैल्यूज हमको मिली, 1, 2, 3, 4 एंड अगेन रिपीट नंबर 1. अच्छा, ये चार पीरियड हमने पार किए, T/4, 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 T/4. ओके, नाउ this and this. Can we make a graph like this? आंसर इज नो. ये उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ट्रू रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, और यहां थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा, दैट इज ओमेगा t इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज π/4. इस 90 डिग्री के हम तीन हिस्से कर देते हैं, 30, 30, 30. ये T/4 के T/12, 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 ये तीन हमने हिस्से कर दिए. सो दिस बिकम्स T/4. अब देखिए साइन की वैल्यू, EMF की वैल्यू कैसे चेंज होती है. दिस इज बेसिकली मैथमेटिक्स, बट आई हैव टू गिव यू द शेप. तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 30 डिग्री T की वैल्यू कितनी? T/12. This is T/6 and this is T/4. ठीक, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. थोड़ा साइन की वैल्यू देखिए ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 120 एंड सो ऑन. हाँ, what is the value of sine? Sine 0 is 0, sine 30 is 0.5, sine 60 is √3/2, that is 0.85, and sine 90 is again 1. And then it goes on changing. This will become 0.85. Okay. E की वैल्यू कितनी होगी? E when multiplied with sin 0, then it will be 0, and here it will be 0.5e, then it will be 0.85e, and then it will be 1e. Complete. Again it will decrease in the same steps. अब देखिए, जब ये 0 to 30 टर्न होता है, how much is the time? T/12 प्लस एक और T/12 प्लस एक और T/12. हर बार ये हो गया T/12, ये दो बार T/12, T/6, ये तीन बार 3T/12. 1T/12, 2T/12, 3T/12. That is T/4. T/0 to T/12 E की वैल्यू कितनी चेंज हुई? 0.5.
0 to t/4 कितनी चेंज हो गई? 1e। ये अच्छा, इसमें when the time is t/12 the change is 0.5। इन दोनों में देखिए चेंज कितना? 0.35। और इन दोनों में देखिए चेंज कितना? 0.15। डिग्री में चेंज देखो, 30 डिग्री रोटेशन, 30 डिग्री रोटेशन, 30 डिग्री रोटेशन, तीनों रोटेशन में टाइम बराबर लगा, तीनों में डिग्री बराबर रोटेट किया, पर ई की वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई? पहले रोटेशन में 0.5, आधी हाइट उसने तो यहीं अचीव कर ली 0.5, बाकी आधी हाइट में 0.35 उसने अगले 30 डिग्री में अटैच की, और उसके बाद 0.15 उसने अगली 30 डिग्री में ली। तो सबसे ज्यादा फास्ट राइज कहां हुआ? पहले वाले 30 डिग्री में, पहले वाले t/12 में। तो पहला t12 30 डिग्री में इसका 50% इसने अचीव कर लिया यहां पर। तो ये पॉइंट नहीं आया, ये पॉइंट आया। दूसरा 30 डिग्री में क्या अचीव किया उसने? इसका 0.85, दैट इज हियर। और तीसरे 30 डिग्री में हियर। सो आवर ग्राफ विल बी दिस। ये इस तरह से हमारा ग्राफ बना, और इस ग्राफ में स्पेशलिटी ये ऐसा आया। फिर उसके बाद क्या होगा? 0.85, फिर से 0.5, फिर 0.0। सो ये वापस भी आएगा इसी टर्म में, इसी फैशन में वापस आ जाएगा। सो दिस इज द कर्व वी गेट, और ये हमें नहीं चाहिए। दिस इज द एक्चुअल मैथमेटिकल सिचुएशन। और ये वाला जो कर्व है इसको आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। What is this curve known as? Sinusoidal curve. And these changes are sinusoidal changes. फिर यहां से आप बनाएंगे, नेगेटिव में भी आपको वही कर्व मिलेगा। इस कर्व की बहुत सारी स्पेशलिटी है। हमको जिससे मतलब है वो ये है that any two points will never have similar height। हमेशा हाइट चेंज होते जाती है, और ये हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? EMF। सो वी कैन से एट एवरी इंस्टेंट EMF इज चेंजिंग। ये समझ आया? यहां से लेके यहां तक का टाइम है, द ग्राफ इज ऑन द पॉजिटिव साइड। सो EMF फॉर दिस पीरियड इज पॉजिटिव, फॉर दिस पीरियड इज नेगेटिव। सो देयर इज ए पीरियोडिकल चेंज इन द डायरेक्शन। और यही दो प्रॉपर्टीज को लेके जो हमारा EMF बना, उस EMF को हम स्टडी करेंगे। वी विल कॉल इट अल्टरनेटिंग EMF। अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली। ठीक है, अब ये डेफिनेशन समझ में आती है। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ग्राफ की शेप। ये शेप कौन सी है? साइनोसॉइडल शेप है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, पैराबोलिक नहीं है, सर्कुलर नहीं है। ये अलग से ही एक शेप है, और इसका नाम क्या है? साइनोसॉइडल। ओके, तो ये शेप को आप याद रखेंगे। ये हमको कहां मिलती है? AC जनरेटर से जो AC का EMF मिलेगा या AC की करंट मिलेगी, उसके वेरिएशन दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। तो ये हमारे AC का सिंबल भी बन गया, AC का वेरिएशन भी बन गया, और ये आपको समझना है। एट एनी टाइम t we can find out EMF by that equation, and this is how it is changing. इसमें आपको क्या क्या याद करना है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूं। नंबर 1, when the angle is 45 डिग्री, what is EMF? 45 आप कहां प्लेस करेंगे? 45 आप ओमेगा टी की जगह प्लेस करेंगे, यहां पर 45। फिर से हमारा न्यूमेरिकल है, द पीक EMF ऑफ ए जनरेटर इज 300 वोल्ट। देन व्हाट इज इट्स EMF व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 45 डिग्री?
यू विल पुट इट 45 हियर और उसकी वैल्यू रख के आप ईएमएफ निकाल देंगे। पर क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता, थोड़ा सा और। व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय इट हैज कवर्ड ए टाइम ऑफ t/6, तो हम क्या करते हैं, t/6 को यहां कैसे प्लेस करना है उसका तरीका देख लीजिए। E इज इक्वल टू E0 साइन और ओमेगा को हम लिखेंगे 2π/t। When this time is given in the language of t, then omega will be converted in the language of t, multiplied by, हमको कितना टाइम बोला जा रहा है, t/6, we will put it like this, t is cancelled, 2π/6, you can convert it into degrees and find out the value of sine, उससे आपको e की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता लग जाएगी। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, पीक वैल्यू। ये पीक बना और इस पीक की वैल्यू, इसी के लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज करेंगे, ई मैक्स। ई मैक्स आपको मिलेगा बहुत सारी बुक्स में, ई पीक मिलेगा बहुत सारी बुक्स में, ई नॉट लिखा हुआ मिलेगा, और एक और शब्द कुछ यूज करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ ई। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये ईएमएफ के बारे में हो गया। दिस इज गिवन बाय दिस जनरेशन एंड दिस स्टार्ट्स आवर न्यू चैप्टर, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। एक दो चीजें और इसमें हमको थोड़ी सी जनरेटर के बारे में हम सोच सकते हैं। एक जनरेटर में हमने एक रोटर लगाया हुआ है, नॉर्मली रोटर, और उसके ऊपर एक फ्रेम लगा के उसमें हम कॉइल को रोटेट कर देते। इससे हमको एक ईएमएफ मिलता है, वो ईएमएफ हम अपने घर में यूज करते। अब हमको ये लगा कि एक पावर हाउस और हमको बनाना है, तो उसके लिए बजट बना, सब कुछ बनाएंगे। तो एक इंजीनियर ने सजेस्ट किया कि ऐसा करो, ये जो जिस ड्रम में हमने इसको लपेटा है उसमें ऐसा एक और तार लपेट दो, दूसरी कॉइल, उसके दो सिरे ऐसे बाहर आ जाएंगे, वो बाहर निकाल लो, और जब हम इसको घुमाएंगे तो उसमें भी करंट आएगी, इसमें भी एक करंट आएगी और उसमें भी करंट आएगी। हमारे दो पावर हाउस चालू हो गए, और हमने बनाया क्या, एक कॉइल और लपेट दिया, एंड दिस वाज अ गुड आइडिया। ठीक है, तो हमने दूसरा लगा दिया और हमको दूसरी करंट चालू होने लगी। तो दूसरे ने कहा भाई दो ही क्यों लगाते हो, एक और लगा लो। तो ठीक है, एक और लगा लिया। ये 360 डिग्री होता है, 120, 120, 120। ये हमने ऐसे 3 लगा लिए। और उसका नाम रखा मल्टीफेस जनरेटर। टॉप से हम देखेंगे, पहले हमने ये कॉइल लगाई हुई थी इसमें, ऐसे देखेंगे इस तरह से ये। उसके बाद हमने यहां पर इससे 120 लेके ये दूसरी कॉइल लगा दी, और इससे 2 तार निकालकर हम ले आए, इससे भी 2 तार निकालकर ले आए, और एक और यहां पर लगा दिया। दिस इज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 2, दिस इज कॉइल 3, और तीनों से हम ये 3 एंड्स हमने ले लिए। 3 एंड्स इधर ले आए, 3 एंड्स इधर ले आए, तो हमने इसकी जोड़ी बना दी, और उस जोड़ी से हमको इसके बीच में एक ईएमएफ मिलेगा, फिर इसके बीच में एक ईएमएफ मिलेगा, और इसके बीच में भी एक ईएमएफ मिलेगा। एक हमने एक शहर में भेज दिया, एक दूसरे में, एक तीसरे में, या हम चाहे तो इन तीनों को भेज सकते हैं।
ये हमारे 3 सर्किट बन गए और इसका नाम क्या होगा? ओके, इनके जो ग्राफ बनेंगे, ये वाले ग्राफ, ये कैसे बनेंगे? एक का ग्राफ ऐसे, तो दूसरे का ग्राफ यहां से यहां, यहां से यहां, ये कितना डिग्री होता है? दिस इज रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, दिस इज 120, 120, 120। दूसरे का ग्राफ यहां से बनेगा, तीसरे का ग्राफ यहां से बनेगा। इस तरह से ये 3 वेव इसमें निकलती रहती है। ये मल्टीफेज जनरेटर विच वी कॉल 3 फेज। तो एक्चुअली हमारे पावर हाउस में ऐसे सप्लाई बनती है और कई बार हम अपने घरों में 3 फेज सप्लाई लेते हैं। इस बिल्डिंग में तीनों फेज आते हैं, तो यहां पर हमारे पास सप्लाई 3 फेज है और ये तीनों फेज में ये डिफरेंस होता है इस तरह से 3 तो ये 3 फेज निकलते हैं और 3 प्लस माइनस जब हम निकालेंगे तो ये 2 पॉइंट निकलेंगे। इसके बीच में भी एसी, इसके बीच में भी एसी और इसके बीच में भी एसी। तो कुल कितने तार निकलेंगे? 6। इस 6 तार को निकालने की बजाय हमने एक दूसरा तरीका किया। हम सिर्फ ये 3 लेकर आते हैं अपने घर में। ये जो तीनों हैं, इन तीनों को पावर हाउस में ही ये यहां से हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप घर से जाते हो, मां को बोलते हो मेरा मोबाइल संभाल के रखना, हमने भी उसको संभाल दिया किसके? मदर अर्थ के पास। ठीक, इन तीनों को लेकर हम अपने घर में ले आते हैं। ओके, ये तीनों को हम लेकर आए अपने घर में यहां पर, और यहां पर हमने अर्थ में एक बोर करके ये तार निकाल लिया। ये हमको कौन मिल गया? ये। तो हम पावर हाउस से कितने तार लेकर आते हैं? 3। दिस वी कॉल 3 फेज सप्लाई। अब यहां पर हमने एक बल्ब लगा लिया, यहां पर एक फैन लगा लिया, यहां पर एक दूसरी मशीन लगा ली। ये एक फेज से चल रहा है, ये दूसरे फेज से चल रहा है, ये तीसरे फेज से चल रहा है। दिस इज 3 फेज सप्लाई जो हमारे घरों में आती है। ठीक है, ओके। इन 2 फेज के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, इट कम्स टू 410। ओके, अब इसमें आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ऑल दिस थिंग इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि 3 फेज होता क्या है। सो यू अंडरस्टैंड नाउ? अगर हम 3 फेज में सप्लाई बनाते हैं तो क्या हम एनर्जी बचा सकते हैं? एक ही पावर हाउस में एनर्जी देके हम 3 सप्लाई ले रहे हैं? आंसर इज नो। अगर हम एक फेज में सप्लाई लेते हैं तो एडी करंट जो अपोज करती हैं उस लोड के प्रोपोर्शन में करती। अगर हमने 1 लाख जूल खर्च कर रहे हैं वर्क, तो उसका अपोजिशन एडी करंट्स का कितना होगा? इसके प्रोपोर्शनेट, और हमको टरबाइन को घुमाना पड़ेगा 1 लाख जूल से। लेकिन अगर हमने ये दूसरा फेज बना लिया, तीसरा बना लिया, और हम 3 लाख जूल खर्च कर रहे हैं, तो एडी करंट का अपोजिशन इंड्यूस करंट का 3 लाख जूल हो जाएगा। तो हमको उसको घुमाने के लिए टरबाइन को 3 लाख जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा ही लगेगा। ये 2 फेज की एनर्जी हमको मुफ्त में नहीं मिलेगी। जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी हमको मिलती है। बेसिकली व्हाट इज दैट मशीन जनरेटर? कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड कंजर्वेशन लॉज आर ऑलवेज एप्लीकेबल। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट इट। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, सो वी क्लोज इट टुडे। थैंक यू।